वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एंजाइम्स। तो आज हम आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन एंजाइम्स को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम बताएंगे एंजाइम्स। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम से। The term enzyme was coined in 1878 by कोहने। पूरा नाम है फ्रेडरिच विलियम कोहने। Biologically catalysts that had previously been called ferments. Manifestation of nature impotence. The name enzyme in Zyme East literally means in East because of most recognizable reaction popularly known as alcohol fermentation by Zyme enzyme in yeast. Next, introduction. Enzyme are biological catalyst. मेन जो एंजाइम की डेफिनेशन अगर शॉर्ट वर्ड में बताएंगे एंजाइम्स क्या होता है, व्हाट इज एंजाइम, तो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट that are speed up to rate of biochemical reaction. Most enzymes are three-dimensional globular protein like tertiary and quaternary structure. Some special RNA species also act. जो कुछ स्पेशल RNA स्पीशीज हैं जो एंजाइम के साथ एक्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम. एग्जाम्पल हेमराइड्स राइबोजाइम. Next, nomenclature. Enzymes are generally named according to reaction they catalyze or by suffixing "age" after the name of substrate. The International Unit of Biochemistry and Molecular Biology developed a nomenclature of enzyme. Each enzyme is described by a sequence of 4 numbers preceded by EC. EC denoted enzyme commission, and the number of enzyme is called EC number. When classified, each enzyme is assigned the EC number is in the form of digits separated by periods. The first number categorizes the enzyme based on its reaction. Here, nomenclature of enzyme. EC is a denoted enzyme commission, and first number is represent which enzyme reaction by get एंजाइम. मतलब कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है किस रिएक्शन के द्वारा हमें वो एंजाइम मिला है, तो उसका नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड टू एक्ट ऑन द एल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप ऑफ डोनर. एंड जो थर्ड नंबर है वो ऑक्सीजन इज एन एक्सेप्टर है या नहीं उसके लिए है. एंड fourth enzyme classified in subclasses of enzyme. Next, structure of enzyme. The active site of enzyme is the region that binds substrate, cofactor and prospective group and contain residues that help to hold the substrate. Active sites generally occupy less than 5% of total surface area of enzyme. Active site has a specific shape due to the tertiary structure of protein. A change in the shape of protein affects the shape of active site and function of the enzyme. Next, active sites. What is active site? Active site can be further divided into two classifications: binding, catalysts. Binding site, it is chooses the substrate and bind to active site. बाइंडिंग साइट चूज करती हैं स्वयं, मतलब इटसेल्फ स्वयं, और अपने आप ही बाइंड होंगी. इनको जो एंजाइम इनके अनुकूल लगेगा कि उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे. लेकिन कैटालिटिक साइट क्या है? इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम. ये एंजाइम का कैटालिटिक परफॉर्मेंस देखती हैं, तब जाके बाइंड होंगी.
कोफैक्टर। कोफैक्टर कई एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है, गेट के पेपर में भी पूछा गया है, ICR JRF में भी पूछा गया है, तो इसको पॉइंट को थोड़ा अच्छे से देखें। कोफैक्टर होते क्या है? कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल which carry out chemical reaction that cannot be performed by standard 20 amino acid. Cofactor are two types: organic cofactor, inorganic cofactor. तो organic cofactor, inorganic cofactors क्या हैं? Inorganic cofactors, these are inorganic molecule required for proper activities of enzyme. These are inorganic molecule required to proper activity of enzyme. Example: enzyme carbon anhydrase required Zn for its activity. कौन सी एंजाइम एनहाइड्रेज रिक्वायर होती हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में? तो Zn+2 तो यहाँ लिखा ही है, और नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ। Mg+2, Mn+2, Fe2+ या +2, कैल्शियम 2+ एंड K+ और Na+। ये कोफैक्टर यहाँ यूज होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में। हेक्सोकाइनेज हैज अ कोफैक्टर Mg+2। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं और एंजाइम एक्टिविटी में यूज होते हैं उनको ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहते हैं। तो व्हाट्स एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर? ग्लाइकोजन, phosphorylase require the small organic molecule pyridoxal phosphate. Next, types of organic cofactors: prospective group और coenzyme. Prosthetic group क्या होता है? Prosthetic group is a tightly bound organic cofactor. Example: flavins, hamate group and biotin. कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स इज अ लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, या कह सकते हैं कोएंजाइम से भी क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आया हुई है। तो कोएंजाइम जो हैं वो कह सकते हैं ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट बाइंड विद एन एंजाइम टू कैटालिटिक रिएक्शन। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट बाइंड विद एन एंजाइम टू कैटालाइज रिएक्शन। जो कैटालाइज रिएक्शन में बाइंड एंजाइम को बाइंड करने में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं कोएंजाइम। लाइक NAD एंड FAD। NAD और FAD की भी फुल फॉर्म पूछी गई है कुछ कंपनी के में, तो लिख लीजिएगा। NAD होता है निकोटिनामाइड, लिखिए निकोटिनामाइड एंड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एंड FAD क्या है? यहाँ NAD तो लिखा है नोट्स में, FAD नहीं है, FAD। FAD क्या है? फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अभी मैं दोबारा कोफैक्टर को रिवाइज करा देता हूँ। कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ये कोफैक्टर जो है एंजाइम एक्टिविटी में रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम को प्रोवाइड कराते हैं। और जो कोएंजाइम है ये ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जो कि बाइंड कराते हैं एंजाइम टू कैटालाइट रिएक्शन। जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी में कोफैक्टर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। एपो एंजाइम क्या होते हैं? एपो एंजाइम एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव, या कह सकते हैं एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन कंपाउंड विदाउट कोफैक्टर। प्रोटीन कंपाउंड विदाउट कोफैक्टर या एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव इज डेजिनेटेड एज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के बारे में भी कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है तो इसको भी देखना है।
या तो विदाउट कोफैक्टर या with its cofactor removal designated as एपो एंजाइम। होलो एंजाइम, होलो प्रोटीन्स क्या होते हैं? दोनों एक ही वर्ड है। द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है कंप्लीट, विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मेटल, आयन एंड अदर कंपोनेंट इज टर्म होलो एंजाइम। क्या है? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी, जो भी जरूरत के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड मेटल, आयन है और अदर कंपोनेंट्स हैं, उसको कहते हैं होलो एंजाइम एंड होलो प्रोटीन्स। सबस्ट्रेट क्या है? द रिएक्टेंट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन इज टर्म एज रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन इज टर्म सबस्ट्रेट। जो रिएक्टेंट यूज होता है बायोकेमिकल रिएक्शन में, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम इट फॉर्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ, तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो आप यहाँ देख रहे हो, सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है एंजाइम के साथ, तो क्या बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, हियर इज एग्जांपल ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में और आईसीआर नेट और जीआरएफ, तो इसको याद करना है। लैक्टोज, जैसे क्वेश्चन आया था, मैंने गेट में देखा, गेट के पेपर में देखा था, पूछा गया था लिपिड प्लस 3H2O और विच एंजाइम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो कौन सा एंजाइम यूज किया गया? लाइपेज। ऐसे ही इस बार कुछ और भी पूछ सकता है, तो इसीलिए सभी को याद करना है। तो या अपन को एंजाइम दे दिया, सबस्ट्रेट कौन सा यूज होता है, प्रोडक्ट ये बन रहा है, या सबस्ट्रेट और एंजाइम इस बार लिपिड्स प्लस लाइपेज प्लस लिपिड्स प्लस 3H2O एंड एंजाइम यूज करा दिया लाइपेज, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। जो सबस्ट्रेट है लैक्टोज, एंजाइम लैक्टेज यूज होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज प्लस जो एंजाइम यूज होगा माल्टेज यूज होगा और प्रोडक्ट जो बनेगा ग्लूकोज। सेलुलोज, सेलुएज एंजाइम यूज होगा, ग्लूकोज बनेगा। लिपिड्स, लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कुछ भी हो सकता है, और लाइपेज के साथ एंजाइम यूज होके आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स बनेगा। स्टार्च के साथ बाइंड एंजाइम जो यूज होगा एमाइलेज यूज होगा और माल्टोज बनेगा। प्रोटीन के साथ प्रोटीज यूज होगा और पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको याद करना है। यहाँ क्लासिफिकेशन बताएंगे एंजाइम्स का अकॉर्डिंगली रिएक्शन एंड रिएक्टेंट टाइप्स एंड एग्जांपल। ऑक्सीडोरेक्टेज, ऑक्सीडोरेक्टेज रिएक्शन क्या टाइप्स होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज मूव केमिकली ग्रुप, ट्रांस जैसे नाम से बता रहा है ट्रांसफरेज, तो मूव केमिकल ग्रुप। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट टाइप्स क्या होता है? मूव केमिकल ग्रुप्स। हेक्सोकाइनेज, इसका एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज बॉन्ड क्लीवेज विद ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। फंक्शनल ग्रुप क्लीवेज होता है ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। एग्जांपल है लाइसोजाइम। लाइज, नॉन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड जो होते हैं उनका क्लीवेज होता है लाइज में, और इसका एग्जांपल है फ्यूमरेज। आइसोमरेज, इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर, जो इंट्रामोलिकुलर ग्रुप होते हैं इस रिएक्शन में उनका ट्रांसफर होता है, इसका एग्जांपल है ट्राइजोस फॉस्फेट आइसोमरेज। लाइगेज, सिंथेटिक ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें सिंथेसिस होता है न्यू कोवैलेंट बॉन्ड का बिटवीन सबस्ट्रेट यूजिंग एटीपी हाइड्रोलाइज। जो सबस्ट्रेट यूज होता है सबस्ट्रेट के मध्य में, बिटवीन बीच में, और यूजिंग होता है एटीपी हाइड्रोलाइज। एंड एग्जांपल है आरएनए पॉलीमरेज। थैंक यू गाइज, और आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम
फुली डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ये छोटा सा चार्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्क्राइब किया है, बाकी फुली डिस्क्राइब करेंगे आगे क्लासिफिकेशन, फिर एंजाइमेटिक काइनेटिक्स मॉडल्स। थैंक यू।